राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, ग्लोरी, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वर का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो ईश्वर का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। गाइए, ओ राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। और राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। Put your hands together. ओ राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Come on, we will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Sing it again.
lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan had me bound, but Jesus set me free. Oh, Satan had me bound, but Jesus set me free. Satan had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Give the Lord a good hand this morning. And on my way to heaven, shouting victory. On my way to heaven, shouting victory. On my way to heaven, shouting victory. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. On my way to heaven, स्वर्ग की ओर जाते हुए, shouting victory. जय को ललकारते हुए, Last night, yesterday evening, और बीते शाम के समय Mr. Bara, what's his first name? Sheetal Bara. मिस्टर शीतल बारा, He's gone to be with the Lord. उनका देहांत का समाचार मिला कि वो प्रभु में चले गए हैं। And they were saying till the last, he was saying, Hallelujah, Hallelujah, और वो Hallelujah. बता रहे थे कि वो आखिरी क्षण तक हालेलुया 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 बोल रहे थे। On my way to heaven, स्वर्ग के मार्ग में चलते समय shouting victory. मैं जय को ललकारते हुए बढ़ूंगा। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Sing it again. फिर से गाएं। On my way to heaven, shouting victory. On my way to heaven, shouting victory. Oh, on my way to heaven, shouting victory. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. Oh, I'm so glad that Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Amen. आमेन। One by one, एक एक करके God is taking His children home. परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। The situation in the world is not very good today. आज दुनिया की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है It's not worth living also. और ये दुनिया जीने योग्य भी नहीं रह रहा है। War, चारों तरफ लड़ाइयाँ, hatred, नफरत, natural disaster, प्राकृतिक आपदाएं, all kinds of things are happening. तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। So many people are maimed and halt because of war. कितने लोग अपंग हो रहे हैं इन लड़ाइयों के चलते। Many have become widows and many children have become orphans. बहुत सी औरतें विधवा हो गई, बच्चे पिताहीन हो गए हैं, अनाथ हो गए। That's why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, when you pray, say, जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, let your kingdom come. तेरा राज इस पृथ्वी पर आए। Amen. आमीन। We sing one song, हम एक गीत को गाते हैं, मेरे जीने का मकसद तू है। मेरे जीने का मकसद तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। Amen. यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों पे चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। वादी पहाड़ों ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी
हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों चराता है। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। The Lord deserves another clap offering from our side. Thank you, Jesus. प्रभु के लिए हम ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद की ताली बजाएंगे। धन्यवाद यीशु। जीसस। Shall we stand to our places? Worship. आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, प्रभु की आराधना करेंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु मसीह भरोसा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया।
गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship your name. Bless your name this morning. Thank you, Jesus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Abba, hum sarai. Abba, hum sarai. Ya Baba Shikara Baba Mama Sibara Baba Mama La Bahika. Abba, hum sarai. Hey Krishna Prabhu. Give you thanks, give you praise, glory, honor, Lord. Shall we? Thank you, Jesus. Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना में जाएं। May John lead us in prayer. हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 आज सुबह अपनी उपस्थिति हमारे बीच में देने के लिए। तो महिमा के योग्य है, स्तुति आराधना की योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु तेरे समान और कोई नहीं। Jesus' name. धन्यवाद देते प्रभु, तू वो करता है जो और कोई नहीं कर सकता है। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी जिंदगियों में वो किया है जो और कोई नहीं कर सकता था। प्रभु आसमानी बाप, आज की सुबह इस स्थान पर जब तेरे लोगों ने अपनी आराधना तुझको भेंट की है, होने दे प्रभु तू उनको छू ले, एक एक को छू ले, एक एक के मन को छू ले प्रभु, एक एक के दिल को छू ले स्वामी। जो किसी बीमारी के साथ यहाँ पर आए हैं वो चंगे होकर जाने पाए यीशु के नाम में। जो किसी भी प्रकार की तकलीफ के साथ आए हैं पिता, वो तेरे वचन से सामर्थ पाकर एक नई सामर्थ, एक नई उमंग के साथ में जाने पाए। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते तेरे पवित्र वचन के लिए, जो वचन हमें संभालता, जो वचन हमारे लिए रोटी है। तूने कहा है मनुष्य केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक कलाम से वो जिंदा रहेगा। प्रभु हम आज सुबह तेरे वचन को खाने के लिए तैयार हैं। हमारी सहायता कर कि तेरे वचन को हाँ और आमीन के साथ, सारी दीनता के साथ में ग्रहण कर सके। हमारे जीवनों में जो चीज़ें प्रभु टूटनी है उसको टूटने दे, जो चीज़ों को बननी है उसको बना। हम अपने आप को आज सुबह तेरे सन्मुख खोलते हैं। केवल तू ही हमारे जीवन में काम कर, हमारी दृष्टि तुझ पर टिका दे, ताकि हमारी आंखें प्रभु केवल तुझको देखती रहे। तेरे दास पासबान को पवित्र आत्मा के दुने चौगुने अभिषेक से अभिषिक्त कर, ताकि जो वचन उनके मुख से निकल कर आता है, जो हमारे लिए जो वचन तूने उनके हृदय में दिया है, वो वचन प्रभु तेरी सामर्थ्य में होकर बोलने पाए। अंधकार की सारी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं, जो हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करती यीशु के नाम में। प्रभु के वचन को स्वीकार करने में हमारी सहायता करना पवित्र आत्मा।
और हमारे जीवन से है पवित्र आत्मा यीशु की महिमा हो। धन्यवाद देते अपने दास को सामर्थ और अभिषेक से अभिषेक कर। यीशु के अतुल्य नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। You may be seated, please. Shall we turn to the book of Galatians, आइए गलातियों की किताब हम खोल लेंगे। 2nd chapter, दूसरा अध्याय। second chapter of book of Galatians. गलातियों दूसरा अध्याय। We are reading verse 20 and 21. उसकी 20 और 21 आयत को हम पढ़ रहे हैं। Galatians, the 2nd chapter, गलातियों उसका दूसरा अध्याय, reading verses 20 and 21. उसका 20 और 21 आयत। Paul is saying, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and who gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by law, then Christ is dead in vain. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। You know, Paul, after his conversion, has taken a different turn. आप जानते हैं पौलुस का मन परिवर्तन होने के बाद उसने एक अलग ही रास्ता मोड़ लिया। He's now serving Jesus. और वो यीशु मसीह की अब सेवा कर रहा है। Earlier he thought that he was serving God, but he was persecuting the church of Jesus Christ. उसे पहले लग रहा था कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है मसीह की कलीसियाओं को सताने के द्वारा। We can be very sincere and we'll be sincerely wrong. हम बहुत अपने विचारधाराओं में सच्चे और ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ हम गलत रास्ते में हैं। Everybody who comes into this world sometime in life asks this question. इस दुनिया में आने वाला हर एक व्यक्ति कभी ना कभी सवाल को पूछता है, Why am I here? कि मेरी पैदाइश इस दुनिया में क्यों हुई है? What is the reason of my life? मेरे जीवन का मकसद क्या है? We sang that song. हमने उस गीत को गाया, मेरे जीने का मकसद तू है। यीशु है। आमीन। Amen. आमीन। So the reason for why we are living here, और जिस कारण से हम इस जगत में रह रहे हैं, everyone that is born हर एक जिसका जन्म होता है on this earth has a time, a span of life which God has given us. इस पृथ्वी पर उसे परमेश्वर ने जीवन का एक समय प्रदान किया है। For some life is quite well, कुछ जीवन बहुत ही अच्छी तरह गुजर जाते, and for some it is hell. और कुछ के लिए वो बड़ा ही कठिन होता है। And for some from very childhood they have never known what is love and peace. और कुछ ने बचपन से ही शांति और प्रेम को जाना नहीं है। They have never known what a family is. उन्होंने कभी परिवार क्या होता है इसको पहचाना नहीं है। Some have never had the privilege of having a father and mother. कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें माता पिता को पाने का सौभाग्य नहीं मिला। Some do not know who their parents are. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अपने ही माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं। So a lot of questions rise in their mind also. ऐसों के मनों में भी बहुत से सवाल उठते हैं When they look at others, जब वो दूसरे बच्चों और दूसरे लोगों को देखते हैं, when they look at families, जब वो दूसरे परिवार की तरफ देखते हैं and look at the people how the family come together. और देखते हैं
कैसे वो परिवार एक साथ मिल के आ रहे हैं। We have not been in those shoes, so we will not know it. हम उन लोगों के जूते में हम नहीं रहे, इसलिए हम जानते नहीं। But you can just know what the heart feels like. परंतु हम जान सकते हैं उनका दिल कैसा महसूस करता There is होगा। insecurity एक असुरक्षा की भावना, and fear of tomorrow आने वाले कल को लेकर एक डर haunts them every day. हर दिन उनको विचलित करती है। For many of them, the parents have separated. उनके लिए बहुतों के माता पिता अलग हो गए हैं Children have grown without father and mother. और बच्चे माता पिता की अनुपस्थिति में बड़े हुए। Some have grown in foster homes, कुछ तो दूसरों के शरण में उन्होंने बड़े हुए, others in orphanages and children homes. कुछ अनाथ आश्रमों में, अन्य घरों में वो बड़े हुए। Their minds are all puzzled and full of questions. उनका मन सवालों से और बहुत ही असमंजस और विचलित है। Question about life. जीवन, इस जिंदगी के बारे में ढेरों सवाल है What is life? कि ये जिंदगी है क्या, Why are we here for? हम क्यों इस दुनिया में पैदा हुए, Does God care? क्या यदि परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, Does he have a plan for me? क्या उस परमेश्वर के पास मेरे लिए कोई योजना It है। seems that God has got a great plan for others. ऐसा लगता है दूसरों के लिए उस परमेश्वर के पास में योजनाएं हैं, But for me, किंतु मेरे लिए, what? मेरे लिए क्या है। Some children have become fatherless. कुछ बच्चे पिताहीन हो गए हैं, Some women have become widows. कुछ औरतें विधवाएं हो गईं, Some wives have left their husbands. कुछ पत्नियों ने अपने पति को त्याग दिया, Some husbands have left their wives, कुछ पतियों ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, thinking the problem will get solved. यह सोचकर कि त्यागने से जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। And there are others who think this life is not worth living, so they try to end the life. ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है जिंदगी जीने योग्य नहीं है, कुछ अपने जीवन को स्वयं अंत करने की प्रयास करते। What is the reason, the purpose of me being here? मेरा और हमारा इस दुनिया में आने के पीछे कारण क्या है। The scripture says the devil has blinded the eyes of man. पवित्र शास्त्र कहती है शैतान ने संसार के लोगों की आंखों को अंधी कर दिया। Remember, you are not devil's property. याद रखना हमेशा कि आप शैतान की संपत्ति नहीं है, You are God's property. आप संपत्ति हैं परमेश्वर की। And the only way the devil can trouble you is by grieve God is by troubling you. और एक ही तरीका जिससे वो शैतान उस परमेश्वर को दुखित करता है, अब वो ये है, ऐसे है, आपको वो परेशान करके उस परमेश्वर को दुखित। When Jesus met Saul of Tarsus on the road to Damascus, जब यीशु मसीह ने तर्शिश के शाऊल को दमिश्क के मार्ग में सामना किया, Saul was thinking he was doing God's job by persecuting the followers of Jesus Christ. तब तक शाऊल जो कर रहा था यीशु मसीह की कलीसिया को सताकर उसे लग रहा था कि ऐसा करके मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। Men, women, children, he didn't care. पुरुष है कि महिला कि बच्चे, उसे इसका फिक्र नहीं था। He thought he was doing the will of God. उसको लगता था इनको कैद में डालने के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। Listen, my friends. मेरे दोस्तों ध्यान दें, Some people are so sincere in their religious rituals and traditions. कुछ लोग इस दुनिया के अपने धर्म के कामों और कर्मों में इतने ज्यादा गंभीर हैं, And yet they are wrong. तो भी गंभीरता पूर्वक गलत रास्ते में। And when Jesus met Saul of Tarsus on the road to Damascus, जब यीशु मसीह ने सामना किया तरशीश के शाऊल का दमिश्क के मार्ग में, he spake his name and said, उसने उस आदमी का नाम लेकर यीशु ने कहा, Saul, Saul, हे शाऊल, शाऊल, why do you persecute me? तू मुझे क्यों सताता है? Who can touch God? परमेश्वर को कौन सता सकता है? Who can touch him? कौन उसको छू सकता Who can approach the Almighty? कौन उस सर्वशक्तिमान के पास यूं पहुंच जाए? But listen, परंतु सुनिए, the church is the body of Christ. कलीसिया यीशु मसीह की देह है। Amen. Amen. And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहे हैं, you touching them, you are touching me. तो जिस कलीसिया को छू रहा है उसे छूकर तू मुझे सता रहा है। Why do you persecute me? तू क्यों मुझे सता रहा है? It is hard for you to kick against the pricks. सुन, पैने पर कांटों पे लात मारना तेरे लिए बहुत कठिन है। That's not the reason you are here, Paul. पौलुस,
इस कारण से तू यहाँ नहीं आ रहा है, The right reason you will know when you know me. परंतु सही कारण क्या है Amen. वो तब जानेगा जब मुझे जानेगा। Hallelujah. The reason for life जीवन का उद्देश्य क्या है? is to know God. परमेश्वर को जानना है। Amen. Amen. And when you know that God is a loving God, और जब ये जान लें कि परमेश्वर, वो परमेश्वर एक प्रेमी प्रभु है, He has a plan for your life from your very mother's womb. वो परमेश्वर के पास तेरे पैदा होने के पहले ही एक योजना है। His eyes are on you. ये जानेगा कि उसकी आंखें लगातार तुझ पर है। David writing in his Psalms, he says, दाऊद लिखता है अपने भजन में और बोलता है, when I was in my mother's womb, you saw me. जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तब से तूने मुझे देखा। When the bones were also not formed, जब मेरी हड्डियां अभी बनी भी नहीं थी, I was without form or anything. और जब मैं किसी रूप या आकार के था, You knew me. तब से तूने मुझे जाना है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। You are special, friend. प्रिय दोस्त, आप बहुत ही खास हैं। Don't you ever think कभी भी अपने मन में विचार मत लाना that God loves others, not कि me. परमेश्वर मुझको छोड़कर दूसरों से प्रेम करता है। Very specially it happens with the preachers. बहुत खास तौर से प्रभु के प्रचारकों के साथ होता है। We tell people God loves you. लोगों से हम बोलते रहते परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Sometimes we don't know. We don't remind ourselves कभी कभी हम अपने आप को स्वयं ये याद नहीं दिलाते हैं that God loves me too. कि परमेश्वर उन लोगों के साथ मुझे भी प्यार करता है। Hallelujah. Once we were in a conference, एक बार हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, all the pastors had come together. सारे पास्टर लोग वहां आए हुए थे, And the preacher came and said like this, और प्रचारक ने मंच में आकर ऐसा बोला, you have preached, you have comforted your people. आप लोग अपनी अपने कलीसियाओं में प्रचार करते हैं, अपने अपने लोगों को सांत्वना दे संभालते हैं, Sometimes you don't get the comfort you need. और कभी कभी जो सांत्वना आपको चाहिए वह आपको मिलता नहीं। So he began to sing one Sunday school song. तो वो प्रचारक, वो प्रभु के दास संडे स्कूल में जो छोटे बच्चे गाना गाते हैं उस गाना को शुरू किया। Jesus loves me, this I know. यीशु मुझसे करता प्यार यह मैं जानता हूँ, For the Bible tells me so. क्योंकि मेरी बाइबल मुझको यह बताती है। Little ones to him belong. छोटे बच्चे भी उसी के हैं। They are weak, but he is strong. वो लोग तो दुर्बल हैं किंतु परमेश्वर बलवान है। And when he began to sing the chorus, और जब उस गीत का कोरस गाने लगे, yes, हाँ, Jesus loves me. यीशु मुझसे भी प्यार करता है। Yes, Jesus loves me. हाँ, यीशु मुझसे प्यार करता The है। whole congregation broke. वो सारी सभा पासवानों की वो रोने लगी। These were pastors. ये सब प्रभु के दासगण थे। Sometimes कभी कभी we need to tell ourselves, हमें अपने आप को भी बताने की जरूरत God है also loves me. कि परमेश्वर मुझसे भी प्यार करता है। So when Paul is writing this, जब पौलुस इस बात को लिख रहा था, he emphasizes something like this. वो कुछ ऐसी बात को यहाँ पर जोर देता है। He says, I am crucified with Christ, nevertheless I live. वो कहता है मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया परंतु अब मैं जीवित ना रहा, Yet not I, but Christ lives in me. पर मसीह मुझ में जीवित है। And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ who loved me. जो परमेश्वर के पुत्र है जिसने मुझसे प्रेम किया। Amen. Amen. Paul is saying, पौलुस कह रहा, who loved me. जिस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। This morning, आज की सुबह you need to tell yourself, आप में से हर एक अपने अपने आप से कहे, yes, हाँ, Jesus loves me too. यीशु मुझसे भी प्यार करता है। Amen. Amen. Paul says, पौलुस कहता, he loved me उस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया and gave himself for me. और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Amen. What more do we want? इससे बढ़कर हम क्या चाहते The हैं? purpose of life जीवन का उद्देश्य is to know your maker. अपने बनाने वाले कर्ता को पहचान ले। Amen. If you are fatherless, यदि तू पिताहीन है, remember,
याद कर, God is the God of the fatherless. परमेश्वर कहता है मैं अनाथों का पिता हूँ। Amen. If there is a widow, यदि कोई विधवा है, God says, I am परमेश्वर उससे बोलता their है own, I am her husband. मैं उसका पति हूँ। Listen, my friends, सुनिए मेरे मित्रों, to know our God, अपने परमेश्वर को जानना, we'll know the reason of our living. अपनी जिंदगी जीने का कारण जान लेना है। Amen. Amen. So God is all the time wanting to reveal himself. परमेश्वर पूरे समय अपने आप को लोगों पर प्रकट करने का यत्न करता रहा। Different times he spake by prophets and people. इतिहास के अलग अलग समय में भविष्यवक्ताओं के और लोगों के द्वारा वो बोलता रहा। He's revealing himself. अपने आप के चरित्र को लोगों को बताना चाहता था। I am that I am that I am. कि मैं वही हूँ जो Hallelujah. हूँ सो हूँ। Hallelujah. Amen. I am your creator. मैं तेरा सृष्टि करता हूँ। God has, you have not come by chance. आप इस दुनिया में यूं ही किसी की भी गलती से आप नहीं आए हैं। Even if it was out of wedlock. यदि विवाह के बंधन के बाहर भी कोई इस दुनिया में जन्म लेता है, Still you are God's property. तो भी सुन ले, तू परमेश्वर की संपत्ति है। Hallelujah. Your mother and father might forsake you. तेरे माता ने तुझको त्याग दिया हो या तेरे पिता ने भी तुझको छोड़कर चला गया, Remember, लेकिन तू याद रख, you belong to God. तू उस महान परमेश्वर का पुत्र पुत्री है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So know him first. पहले उस प्रभु को जान ले, Almighty, सर्वशक्तिमान, merciful, दयालु, compassionate. तरस खाने वाला। Amen. ओ जीसस। The steadfast love of God never changes. परमेश्वर का स्थिर प्रेम कभी बदलता नहीं। His mercies उसकी करुणाएं never comes to an end. का कोई अंत नहीं। Amen. So God is reminding to know the purpose of life परमेश्वर याद दिला रहा है तेरे इस दुनिया में जीने का मकसद क्या है। is to know God. परमेश्वर को, उस प्रभु को जानना। Amen. आमीन। Everything good, हर चीज जो भली है, every thought of God towards mankind is good. परमेश्वर के का विचार मनुष्यों के प्रति हमेशा भला है। Remember, याद रखना, while we were yet in sins, जब हम लोग दुनिया में पाप में थे, Christ died for the ungodly. उस पापी हम मनुष्यों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दिया है। Amen. That is love of God. ये है परमेश्वर का प्रेम। The devil came and spoiled the relationship between man शैतान ने आकर and God. हम मनुष्यों का अपने परमेश्वर के साथ उस पवित्र रिश्ते को खराब किया। God's purpose and plan for mankind, परमेश्वर का उद्देश्य और मकसद मनुष्य जाति के लिए that God will have fellowship with him. यह था कि वो परमेश्वर हमारे साथ साथ संगति करे। He needed someone उसे ऐसे लोग चाहिए with whom he can talk, जिनके साथ वो बात करे and they will talk back to him और वे उससे बात करें and have fellowship with him. और दोनों आपस में संगति करें। Man, परंतु तब God says this man should inherit the earth. परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। This was not, listen, devil doesn't have any property. सुनिए, इस पूरी पृथ्वी में शैतान की संपत्ति कहें तो 1 इंच भी नहीं, The earth is the Lord's. क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि पृथ्वी पूरी की पूरी परमेश्वर की And the है fullness thereof और उसमें की संपूर्ण भरपूरी भी belongs to God. परमेश्वर की है। But he has usurped it. लेकिन शैतान ने उसको कब्जा हड़पा है। Deceiving Adam, he got the authority. आदम को बहकाकर उसने पृथ्वी पे अधिकार लिया। From then on, war and उस दिन bloodshed से and खून, murder. हत्या, लड़ाई, युद्ध, That was not God's plan. ये सब परमेश्वर की योजना नहीं थी। God's plan for man was good. परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए भली थी। Hallelujah. हालेलुया। Every one of you. आप में से एक एक जन के लिए His plan was उसकी योजना आपके लिए you might receive all what God has for you. कि आप Blessings. वो सब आशीषों को पाएं
जो परमेश्वर चाहता है कि आप पाएं। Jesus said, "You might have life, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ have it more abundantly." और बहुतायत का जीवन पाओ। Sometimes when we look at ourselves, we don't think we are living that life. कभी कभी हम अपने जीवन को देखकर सोचते हम वैसा जीवन जी रहे हैं। Friends, प्रिय मित्रों, God's desire is that we might have life, we might live and live with all the blessings of God. परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवन को जिएं और प्रभु की सारी आशीषों के साथ जिएं। To receive from God, परमेश्वर से पाने के लिए we need to align ourselves with God's will. हमें अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के साथ में मिलाना जरूरी है। Amen. आमीन। God has a purpose. परमेश्वर के पास एक योजना है। Like example, उदाहरण के लिए some father has got a business किसी पिता के पास में एक व्यापार है and he's a plan to hand over his business to his son. और उसने योजना बनाई है अपने व्यापार को अपने लड़के को देने का। But the son doesn't align with himself with the purpose of the father has for his son. लेकिन लड़का अपने आप को परमेश्वर के उस योजना में मिला, उसके पिता की योजना में मिलाता नहीं। So what happens? तो क्या होता है? He loses the blessing. वो उस आशीष को खो देता है। Huh? Like the prodigal son. जैसे उड़ाऊ पुत्र, He went another tangent. वो दूसरे दिशा में चला गया, Wasted all his father's goods. अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। So what God has given us, परमेश्वर ने हमें जो दिया है, are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमीन। To know him, उसे जानना, we must know his word. हमें उसके वचन को जानना होगा। Amen. आमीन। So I encourage every one of you to read your Bible as much as possible. मैं आप में से प्रत्येक को प्रोत्साहित करूंगा कि जितना हो सके अपनी बाइबल को आप पढ़ें। I know you have work, you have business, your school, your studies, मैं जानता हूं आपका काम, नौकरी, व्यापार है, पढ़ाई, but Bible comes first. परंतु बाइबल इन सब में प्रथम आता है। Amen. आमीन। So to align yourself with God is to obey God's word. अपने आप को परमेश्वर के साथ मिलाने का अर्थ है प्रभु के वचन में चलना। If you have never accepted Christ, यदि आपने यीशु को कभी इसके पहले ग्रहण नहीं किया है, so we repent of our sin, तो अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। God will forgive us. प्रभु हमें माफ कर देगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You don't have to pay anything, आपको माफी पाने के लिए कुछ धन देने की जरूरत नहीं है, not put offering to be ना forgiven, दान भी देना नहीं है परमेश्वर की माफी पाने के लिए, because it's all free. क्योंकि ये पूरी तरह से आपके लिए स्वतंत्र है। It is not cheap. लेकिन सस्ता नहीं है। Jesus has paid the price of his blood आपके उद्धार के लिए यीशु ने अपने लहू का कीमत चुकाया है, to repent of your sin, आपके पापों से पश्चाताप करने के लिए, receive forgiveness from God. परमेश्वर से माफी चाहने के लिए। Amen. आमीन। To know that you are forgiven. यह जानने के लिए कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए। Don't look back or the devil will put guilt in your mind again. पीछे मुड़कर ना देख, जहां पर शैतान फिर से पुनः तेरे अंदर में तेरे पापों का ग्लानि उत्पन्न करे। When the blood of Jesus cleanses you from all sin, जब यीशु का खून तुझे सारे लहू से शुद्ध कर दे, God also forgets it. परमेश्वर भी तेरे पाप को भूल जाता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He forgets. वो भूल जाता है। I was thinking, मैं सोच रहा था, if men in the Old Testament was pronounced righteous because of the deeds, यदि पुराने नियम में लोग अपने कर्मों के द्वारा धर्मी कहलाते थे, in their devotion towards God, परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण के कारण, how much more तो फिर कितना बढ़कर we who wear the righteousness of Christ हम जो मसीह की धार्मिकता को धारण किए हुए हैं, should be blessed. हमें कितना बढ़कर आशीष पाना चाहिए। Hallelujah. आमीन। We are always looking at Abraham's blessing. हम हमेशा अब्राहम की आशीष की तरफ देखते हैं, What about the one who is greater than Abraham? परंतु अब्राहम से भी बढ़कर जो है उसके बारे में क्या सोच है। Hallelujah. 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 If that blessing could come on Abraham, यदि वो आशीष अब्राहम के ऊपर आ सकती है, how much more will spiritual church of Jesus Christ be फिर blessed? कितना बढ़कर यीशु मसीह की आत्मिक कलीसिया अनुग्रह को आशीष को पाएगी। If you have never asked God to forgive you, यदि आपने आज से पहले कभी भी परमेश्वर से कहा नहीं कि मुझे माफ कर दे, do it. तो आप आज करें।
Don't have to do it publicly. उसे पूरी जनता के सामने जोर जोर से करने का कोई नियम नहीं है। Where you are. आप जहां जिस हालात में हैं, Maybe go home on a bed. हो सकता है घर जाकर अपने बिछौने में पड़े हुए, Wherever. कहीं और Make this your choice. अपने जीवन का चुनाव कर लें God, I repent of my sin. कि परमेश्वर मैं अपने पापों से मुड़ता हूं, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। God will forgive you. परमेश्वर आपके पाप को माफ कर देगा। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। See, he's not saying words just to please us. देखिए, परमेश्वर कभी ऐसे शब्दों को नहीं कहता जिससे हमको शब्द सुनने से खुशी आती। He's wanting to bless us. वो जो कहता है वो आशीष देने के लिए है। So to know his will and purpose for our life, first Come on. do the things first. अपने जीवन के लिए उसके उद्देश्य और मकसद को जानने के लिए पहला काम जो करना उसे पहले करें। Don't say I'll become perfect then I'll come to God. ये ना कहे मैं कुछ और सुधर जाऊं और अच्छा हो जाऊं, मैं फिर प्रभु के पास आऊंगा। No, no, no. नहीं। You come as you are. जिस हालत में वैसे आ, Come, God will do everything for you. वैसे आ और परमेश्वर तेरे लिए सब करेगा। Receive his forgiveness. उसकी क्षमा को तुरंत ले ले। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Sometimes we come here, we say, give your life to Christ. कभी कभी हम यहाँ पर आते हैं यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए। Actually, he is giving us something. वास्तव में हम नहीं, परंतु हम जब सामने आते तो वो हमको कुछ दे रहा है, Forgiveness of और sins. वो देता है पापों की क्षमा। Go sin no more. और ये बोलकर वापस Hallelujah. भेजता है, जा Hallelujah. और अब से पाप मत करना। Amen. Amen. We do wrong. हम गलत करते हैं, Ask God forgive you. God प्रभु will से माफी मांगते, प्रभु माफ करता है। Amen. आमेन। 100 times if you go to ask God, ask him. सैकड़ों बार यदि प्रभु से माफी मांगना है, बार बार माफी मांगे। You say, do you do that? आप पूछते होंगे कि आप भी ऐसा करते हैं? Yes, I do. हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। Amen. आमेन। Every time I go in prayer, हर बार जब मैं प्रार्थना में जाता हूँ, I ask God to forgive. मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु मेरे पाप को माफ कर दे। Amen. Amen. Somewhere along the line we might displease him. कहीं चलते चलते रास्ते में मैंने प्रभु को अप्रसन्न किया होगा, And to come in align with God's plan in your life, और परमेश्वर की योजना में अपने आप को मिलाने के लिए accept Christ as your personal savior. मसीह को सर्वप्रथम अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण, Believe he's the son of God. विश्वास कर ले कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो जगत में। Believe he died for you on the cross of Calvary, shed his blood. विश्वास कर कि वो अपने लहू को क्रूस पे बहाया और मौत को उसने जीवन को अपना दे दिया। Third day he rose again. और विश्वास कर कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। Your soul will be saved. ऐसा करने से तेरा प्राण उद्धार को पालेगा। Amen. You can get into the right track. और तू अब जीवन के सही मार्ग में आ जाएगा। Pray every day. हर रोज प्रार्थना कर, Commune with God every day. परमेश्वर के साथ हर दिन संगति कर। Believe that God is your guide now. विश्वास कर कि परमेश्वर अब तेरा मार्गदर्शक है। Hallelujah. आमीन। I always wonder how the train changes its tracks. कई बार मैं सोचता हूँ कि ट्रेन कैसे एक रास्ते में जब चल रही है तो कैसे ट्रैक बदलती है। Sometimes when you come into a big yard, कभी कभी रेल- आप रेलवे यार्ड के आसपास से गुजरते हैं, so many tracks and so many turns. वहां पर इतनी मोड़ और इतनी ढेर सारी लाइन है, And how they manage it. और कैसे वो लोग ट्रेन की दिशा को मोड़ देते हैं। It looks like it's going straight into the platform now. ऐसा तो लग रहा है कि वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ ही बढ़ रही है, Suddenly it takes a turn like this, goes. लेकिन उसका दिशा मुड़ जाता है, वो दूसरे तरफ जाती है। A man can change direction. यदि मनुष्य दिशा को बदल सकता है, How much more God? फिर कितना बढ़कर परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। He will change your direction. वो आपके जीवन के दिशा को मोड़ देगा। Amen. Amen. When you follow him, जब तू उसके पीछे चलेगा, he is desirous to do something for us वो हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है, because we are his children. क्योंकि हम उसकी संतान हैं। Paul, पौलुस before his conversion, उसके यीशु मसीह को जानने के पहले is living a selfish life. वो एक बड़ा स्वार्थी जीवन जी रहा था। The question we would ask ourselves, सवाल जो हम अपने आप से पूछते हैं,
Whom am I living for? मैं किसके लिए इस दुनिया में जी रहा हूं? Some people are so selfish. कुछ लोग इतने स्वार्थी हैं, They live for themselves. वो अपने आप के लिए जीते हैं। हम खाते पीते हैं, हम खाते पीते हैं, so miserly they are that all the time they are thinking of themselves only. और वो इतने स्वार्थी हैं कि वो अपने ही बारे में पूरे वक्त सोचते रहते हैं। Some parents would do like that. कुछ माता पिता ऐसे करते हैं, Some children would be like that. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, Or maybe people. कुछ लोग कह लें Self, self, self. खुद खुद और खुद के लिए। You know, don't think you and I don't have self. ये ना सोचे कि मेरे और आप में कोई स्वार्थ नहीं है। You go to these big bazaars. What is that? Very good. क्या है? Some good name. आप बाजार में जाते हैं, कुछ West side. Don't go east side, west side. वेस्ट साइड, As you enter in, और जैसे ही आप उसके अंदर कदम रखते हैं, where your eyes go. आपकी आंख कहाँ जाती है? I don't have to tell you. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। For yourself. अपने खुद के लिए। Do we think of somebody else? क्या हम वहां पर किसी और के लिए सोचते हैं, Or it is for me? या अपने लिए सोचते हैं? तुमको भी चाहिए क्या? तुमको भी चाहिए क्या ये? ऐसा तो दो है हमारे घर में, घर में ऐसा दो रखा है, तो तुम क्यों ले रहे हो तीसरा? For others, दूसरों के लिए। even the children are lost over there. बच्चे भी वहां पर गुम जाते हैं। One time one church member, he is sitting here, but I won't tell him whose name. एक चर्च के भाई, वो यहाँ बैठे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। That time his child was very small. बच्चा बहुत छोटा था। He is roaming outside with a child. अब वो बच्चे को लेकर बाहर टहल रहे थे। I said, why? मैंने कहा क्यों? He says, Mrs. is inside. कहे पत्नी अंदर है। She doesn't know when the child is also gone out. उसको पता भी नहीं कि बच्चा मेरे पास है। The dress, self. कई बार कपड़े खुद के लिए, And also, और साथ में selfie. सेल्फी का, स्वयं का। Sometimes you go into airport. कभी एयरपोर्ट जाते, So many shots people इतना are taking. अलग अलग दिशा से लोग चित्र खींचते You अपना, know, all our photographs are all buried. और वो पूरे चित्र एक दिन सब कूड़ा में चला जाता है। Old time at least there was an album. पुराने समय कम से कम एल्बम में पलटा के देख लेते थे। We've got some old photographs. पुराने चित्र Dadaji. दादाजी का। Because those days the camera was like this, you have to go inside and उस समय कैमरा में उस पूरे कपड़े से अपने सर को ढककर वो खींचता था, you couldn't keep smiling for a long time. So you और have to ज्यादा be समय तक लोग उस समय मुस्कुराते भी नहीं थे, सब गंभीर बैठे रहते थे। self. स्वयं, Who are you living for? किसके लिए आप जी रहे हैं? हम कहते हैं हम पाजा हमारा है. हम खाते हैं। Sometimes your family there will be problem when you say that मेरा पैसा है. और जब कोई कहता ही मेरा पैसा है, तब परिवार में कुछ तकलीफ उत्पन्न होती है, Because both are earning. क्योंकि दोनों यदि कमा रहे हैं, Sometimes कभी कभी वो मेरा पैसा है. वो मेरा पैसा है। Don't do that. ऐसा ना करें। Amen. आमेन, Amen. आमेन। As a Christian, we shouldn't do that. एक मसीह होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना है। I remember मुझे याद है, one time one pastor, एक बार एक पास्टर, his wife was earning. उनकी पत्नी अर्न कर रही थी, कमा रही थी, Something happened and she says, हाँ मेरा पैसा तो है ही है. और कुछ हुआ और उसने कहा ये मेरा पैसा है। He said, all right, take this. उसने कहा ठीक है, तुम इसको रख लो, He walked off.
और उन्हें जरूरत थी लेकिन वो निकल कर चले गए। How selfish we can be. हम कितने स्वार्थी हो सकते हैं। Amen. Amen. Living for yourself. अपने स्वयं के लिए जीना, And then with all that bank account, you go without anything. और पूरे बैंक अकाउंट के होने के बावजूद आप शून्य होकर चले जाते Some हैं। are living for the children. कुछ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, That is good. अच्छी बात है। Some live for their father and mother. कुछ अपने माता पिता के लिए जी रहे हैं, Some are living for the nation. कुछ देश के लिए जी रहे हैं, Some are living for the society. कुछ समाज के लिए जी रहे हैं, Some are living for God. कुछ परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। Our love and service for others हमारा प्रेम और सेवा दूसरों के प्रति will show for whom we are living for. यह बताएगा कि हम किसके लिए जी रहे हैं। Are you here? क्या आपने इसको सुना? Amen. आमेन। If you love somebody, you will serve. आप किसी से यदि प्रेम करते हैं तो आप उसकी सेवा भी करते हैं। Amen. आमेन। So when you are serving somebody, जब आप किसी की सेवा कर रहे हैं, that shows whom you are living वो for. यह बताता है कि आप किसके लिए जी रहे हैं। Amen. आमेन। Romans 14 chapter, रोमी 14 अध्याय 7th and 8th verse says, और उसका 7-8 कहता है, For none of us liveth to himself. 14 chapter 7 and 8. रोमी 14, 7 और 8। For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। You know, he's talking about believer. ध्यान रहे कि वो विश्वासियों को लिख रहा है। A believer live for others, for God first. एक विश्वासी सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए जीता है। And when he dies to himself. वो जब मरता भी है तो प्रभु के लिए मर जाता है। Amen. Amen. 8th verse. 8वां। For whether we live or whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। Whether we live or die, we are the Lord's. अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। Amen. Amen. So believer is always in profit. विश्वासी फायदा है। हमेशा फायदा में रहता है। जिंदे हैं भी तो फायदा है, जिंदे रहते हैं तो विश्वासी फायदे में रहता है, मरेंगे भी तो फायदा है. मरने पे भी विश्वासी को फायदा होता है। Paul says, I have come into a great state. पौलुस कहता मैं एक बहुत ही कठिन रास्ते में आ गया, असमंजस में। Philippians 1st chapter, फिलिपियों पहला अध्याय verse 21. और 21 आयत। We all know this by heart. हम मुखाग्र इसे जानते हैं। Okay? First chapter, पहला अध्याय 21 आयत। yes. Reading from verse 21. 21 आयत से आगे। For me to live is Christ and to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ? कुछ लोग बोलते कि कब मरेगा मुझे लाभ मिलेगा. कुछ लोग सोचते कब मरेगा कि मुझे लाभ मिलेगा। Somebody dies immediately they go gold chain निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया इसको. मर गया तो उसका सोने का चेन निकाले कि नहीं निकाले। अंगूठी मत भूल देना. अंगूठी मत भूल जाना। और दादाजी ने जितना ढेर पहन रखे हैं. दादा ने बहुत यहाँ पहन रखा है। Listen. सुनिए What he's saying. कह रहा है, For me मेरे लिए to live is Christ. जीवित रहना मसीह है। The purpose of my life is to live for him. मेरा जीवित रहना मसीह के लिए है। And if I die, और यदि मैं मर जाऊं it is no problem. तो मेरे लिए लाभ है, कोई समस्या नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Read on. आगे पढ़ें। But if I live in this flesh, this is the fruit of my body, yet what shall I choose? I do not know what. पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं। For I am in a great strait betwixt two, having desire to depart and to be with Christ,
which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। जी तो चाहता है, जी तो चाहता है, हालेलुया, कूच करके मसीह के पास जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। My desire मेरी मन की इच्छा है wants to go with Jesus, कि मैं यीशु के पास जाकर रहूं, but for your sake परंतु तुम लोग जो यहाँ जीवित हो उनके खातिर I must stay some more time. मुझको शरीर में जिंदा रहना भी आवश्यक है। Amen. आमेन। Listen, my friends. सुनिए प्रिय मित्रों, Where is your heart? आपका दिल कहाँ है? For me, मेरे लिए to live is Christ, जीवित रहना मसीह है, and to die is gain. मर जाना लाभ है। Amen. आमेन। A believer, when he dies, he goes to straight to God. एक विश्वासी जब मरता है तो सीधा परमेश्वर के पास जाता है। Now somebody comes around in that same भूस भेषा क्या बोलते हैं, same form, don't think it is your that same person. और यदि कोई व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है, यदि उसी के रूप में कोई दूसरा आ जाए तो ये न सोचना कि जो मर गया था वही व्यक्ति जिंदा होकर दिखाई दे रहा है। नहीं, चाचा आए थे, चाचा रात में आए थे। there is no चाचा. कोई चाचा जो मर चुके वो नहीं आते। Believer is enjoying himself with God's presence. यदि वो विश्वासी है, वो प्रभु की उपस्थिति में वहां खुश है। What glory that is. वो क्या महिमा की जगह है। Why could Paul say this? पौलुस इस बात को क्यों बोल पा रहा था? Because he's already seen a glimpse of heaven. क्योंकि उसने उस स्वर्ग की जहां वो जाने वाला था उसकी कुछ झलक देख ली थी। You know, he says, I was caught up in the spirit वो कहता है into third heaven. मैं दर्शन में मैं सातवें तीसरे आसमान में उठा लिया गया। And I saw things I cannot utter. और ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी जिसको मैं जुबान में ला नहीं सकता। Nowadays people go to heaven and they write a book. आजकल लोग स्वर्ग से लौटकर वो किताब लिखते हैं। Which one they saw, I don't know. मैं नहीं जानता कौन सा स्वर्ग का दर्शन उन्होंने पाया। I'm just saying like that. मैं यूं ही बोल रहा हूं। But Paul says things are so indescribable. पौलुस कहता है जो चीजें मैंने देखी वो वर्णन से बाहर हैं। Eye has not seen or ear has heard. ऐसी ऐसी चीजें जिसको हमारी आंखों ने कभी नहीं देखा, हमारे कानों ने जिसकी चर्चा भी नहीं सुनी। Things that God has prepared for whom? ऐसी चीजें जिसको परमेश्वर ने किनके लिए तैयार कर रखी है? For you and me. आपके और मेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। Things that God has prepared in heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसे असाधारण चीजें तैयार रखी है For those who love Him. उनके लिए जो उस परमेश्वर से प्यार करते हैं। Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, What do you think? God has a plan? Yes. क्या आपको लगता है उस परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ If you have योजना है? lost everything in this world, यदि आपने इस पृथ्वी पे अपना सब कुछ आखिरी भी खो दिया, you have nothing. आपके पास कुछ नहीं बचा, By believing in Christ Jesus, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा you will not only have eternal life, न केवल तू वहां का अनंत जीवन पाएगा, but all the glories of heaven shall be yours. परंतु उस अनंत काल के जीवन में स्वर्ग की महिमा का भागीदार भी होगा। Amen. आमेन। You tell the people, आप लोग से कहें, you bomb blast here, bomb blast there. यहाँ बम वहां बम फट रहे, People are dying. लोग मर रहे, And questions are rising. सवालों पे सवाल उठ रहे। Is this the way of life? What is life? जीवन का यही रास्ता है? क्या है जीवन? The real life begins after death. वास्तविक जिंदगी की शुरुआत तो मरने के बाद होती है। Amen. आमेन। You might die a pauper, हो सकता है कोई आदमी इस दुनिया में एक भिखारी के रूप में ही मर गया, but in His kingdom, लेकिन उस परमेश्वर के आने वाले राज्य में for His faithfulness, he shall receive a crown of life. उसकी विश्वास योग्यता के कारण Hallelujah. वो अनंत काल का वो मुकुट पाएगा। Amen. आमेन। This world anyhow is going to go away. ये दुनिया तो किसी भी तरह से गुजरने वाली The है। world is passing away. दुनिया गुजर रही है।
You see what is happening in Middle East. आप मध्य पूर्व देश में जो हो रहा देख रहे हैं, History began there, it's ending there. इस पूरी विश्व का इतिहास का पैदा होने की जगह वही थी, अब लगता है उस सब का अंत भी वहीं हो The जाएगा। river Euphrates is also dried up, और वो यूफ्रेटिस नदी भी अब सूख गई। preparing for that great war of Armageddon. ये चिन्ह है उस आर्मगेदोन के युद्ध का, एक लक्षण है उस नदी का सूखना। The end of the world. जगत के अंत का एक चिन्ह में से एक है। Before that, लेकिन इसके पहले He's coming back again. यीशु मसीह पहले वापस लौटने वाला है। Hallelujah. Amen. Let us get ready. हम तैयार हो जाएं। Maybe your house situation is not good. शायद आपके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है। You think of finishing your life. कोई सोचता है अपने जीवन के अंत के बारे में। God has a purpose for you, my friend. परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य है मित्र। He loves you, save your soul. वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए अपने जान को दिया है। The just shall live by faith. और कहता है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। Hallelujah. Amen. Amen. We don't need money to live. हमें जिंदा रहने धन की जरूरत नहीं, We don't need friends to live. हमें जिंदा रहने मित्र की जरूरत नहीं, We need God. हमें परमेश्वर चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। When God is with us, जब परमेश्वर हमारे साथ है, who can be against us? फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? You might be sick. हो सकता है बीमार है, You're thinking of what will happen tomorrow. और आप सोचते हैं कि आने वाले कल मेरे साथ क्या होगा। Because He lives, सुन, क्योंकि वो प्रभु मरता नहीं, जिंदा है, you will face tomorroं. इसलिए तू आने वाले भविष्य का भी अच्छी तरह से सामना कर लेगा। Amen. Amen. It is a faithful saying. ये एक विश्वास योग्य कहावत है। Paul writing to Timothy says, पौलुस तिमुथियुस जवान को लिखकर बोलता है, For if we be dead with Him, we shall also live with Him. यदि हम उसके साथ मारे जाते हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। God has not appointed us unto wrath, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नियुक्त नहीं किया है, but to obtain salvation by Jesus Christ, परंतु यीशु के द्वारा उद्धार पाने के लिए हमें बनाया है। who died for us, जो यीशु हमारे लिए मारा गया, that whether we wake or sleep, चाहे हम जागते रहें या हम सो जाएं यानी मर जाएं, we should live together with Him. हम उसके साथ साथ जिए। Amen. आमेन Amen. आमेन। One more verse. एक और आयत, 1 John 4th chapter, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9th verse. और उसकी 9 आयत। In this was manifested the love of God towards us, because that God sent His only Son, begotten Son, into the world, that we might live through Him. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। Amen. आमेन। We might live through Him. ताकि हम उसके द्वारा जीवित रहें। Don't try to end your life. अपने जीवन को अंत करने का प्रयास कभी नहीं करना है। Amen. आमेन। Tomorrow क्योंकि आने वाला कल the sun will shine. सूर्य फिर से तेरे जीवन में चमकेगा। Amen. Weeping may endure for the night, शायद रात भर आंसू के साथ रोना पड़े, joy will come in the morning. लेकिन जैसे पह फटेगी आनंद लौटेगा। Hallelujah. Jesus is coming back. यीशु जल्द आ रहा है। The dead in Christ will rise. और मसीह में जो लोग मरे हैं पूर्व में वे जी उठेंगे। We who are alive shall be caught up together to meet the Lord in the air. और हम जो उस समय जीवित रहेंगे हम बादलों में अपने प्रभु से मिलेंगे। Get ready. तैयार रहें, Time is short. समय कम है। Jesus is coming. यीशु जल्द आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Watch जागते and रहो, pray प्रार्थना करते that रहो, they should not catch us as a thief. ताकि वो दिन हम पर चोर की नाई ना आ पड़े। And pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करें, God give us grace प्रभु हमें अनुग्रह दे that we will be ready ताकि हम तैयार पाए जाएं when Jesus comes back again. जब यीशु लौट कर वापस आए। I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। You know, the death of the cross is a slow death. क्रूस की मौत धीरे धीरे मिलने वाली मौत थी।
Our enemy, I said, is the devil, मैं कहता हमारा शत्रु शैतान है, the world, हमारा शत्रु दुनिया है, thirdly, this flesh. और तीसरा हमारा ही शरीर हमारा शत्रु है। Always makes us to sin. हमेशा ये चीजें हमें पाप में ले जाती हैं। Our senses, हमारी इंद्रियां, our emotions, हमारी भावनाएं, the soul part makes us to fall. जो हमारा प्राण वाला भाग है हमें गिराता है। So Paul is saying, इसलिए पौलुस कह रहा है, you know, we cannot rebuke our flesh. आप जानते हैं हम अपने शरीर को डांट तो नहीं सकते। Paul says, I beat my body, पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ bring it under subjection. और उसको अधीनता में लाता हूँ। The actual translation says, उसका जो वास्तविक अनुवाद ऐसा है, I make my body a slave to myself. मैं अपने शरीर को गुलाम बनाता हूँ अपना, What I say, you will do. ताकि जो मैं कहूँ वही ये शरीर करे। Amen. Amen. So he says, तो कहता है, I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया Slowly this flesh is dying. और धीरे धीरे ये शरीर तो मर रहा है। I don't live now. अब मैं नहीं जो जीवित हूँ, Christ lives in me. परंतु मसीह मुझ में जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। I wish मैं कामना करता हूँ God will make us understand more on this. परमेश्वर इस वचन पे और समझने में हमें मदद करे। For me to live मेरे लिए जीना is Christ, मसीह है and to die और मर जाना is gain. लाभ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich. Let the blind say, I can see. All the Lord has done for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Father, we pray this morning प्रभु आज सुबह हम तेरे सन्मुख आते हैं and we pray, Lord, that we will understand you more better. और ये प्रार्थना करते कि हम तुझे और बेहतर समझ पाएं, To know the love of God परमेश्वर को प्रेम को जान पाएं surpasses all knowledge. जो हमारे सारे ज्ञान से भी परे है। Help us know हमारे को समझने में मदद कर। you are our Father. तू हमारा पिता है, We are your children, Lord. हम तेरी संतान है प्रभु। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे Let all of us, Lord, together ताकि हम सब लोग मिलकर love you and serve you all the days of our life. तुझसे प्रेम कर सके, जीवन भर तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen.